Assalamu alaikum students. How are you? So far, we have studied about the prudential regulations relating to the credit cards, auto finance, housing finance, personal loans. We started regulations about SMEs. We have seen only some definitions. We shall continue with that. So the prudential regulations, we have been talking about that. These are the regulations for good governance. Over and over again when we speak, I talk about that. These regulations, those are meant for the good governance by the banks. These set a minimum risk management criteria, which is very much important to safeguard the interests of the respective stakeholders, the banking industry, the financial sector, the economy as a whole. In the larger perspective, if you say, it is not the question of one bank, one branch, or one customer. It is a holistic approach, and the central bank, being at the top of it, has to take those measures. So, students, when these prudential regulations come to your mind, this concept should always be on the back of your mind. Without this concept, we will just read and study the regulations. But the real purpose, real impact, and the basis and the rationale for which these regulations have been devised and formulated, that will not be known to us. And these regulations will not be conveying the true picture and the meanings for which these are devised by the central bank. So in that perspective, we have to see these prudential regulations, and we have been impressing upon that, and we have been talking about that. So having studied these 4 regulations, that is about regulations about credit cards, about auto finance, about house financing, and about personal loans. Now we move on to the regulations regarding SME financing. Small and medium enterprise financing, जिसे हम कहते हैं. So we were talking about different definitions. Definition, the bank that we have already seen. Borrower with respect to SME, what does it mean, that we have seen. Corporate card, that we have studied. So students, so far we have seen these definitions. We talked about the contingent liability. कि कुछ एक्सटेंट तक हमने contingent liability की बात की थी. Contingent liability, उससे आगे की हम बात करते हैं कि एक तो occurrence and non-occurrence contingency की बात है जो हम कर चुके हैं. इसके अलावा contingent liability क्या है, ये आप स्लाइड पर देखिएगा. A present obligation that arises from past events but is not recognized because. Present obligation है, but that is the result of the past obligation. But that is not recognized because of these reasons जो दिए हुए नीचे. It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Or the amount of obligation cannot be measured with sufficient reliability. अब ये कहाँ आपको नजर आएगा? That is embodied in this definition. मैंने बैंक गारंटी की बात की थी, जिसको लेटर ऑफ गारंटी भी कहते हैं. And it includes किस किस जगह आपको ये contingent liability मिलेगी. And includes letters of credit, letters of guarantee, bid bonds, performance bonds, advance payment guarantees rather, and underwriting commitments. All these notions and concepts we have gone through. Letter of credit पर हमने बड़ी डिटेल में बात की. Performance bonds की भी बात हुई, bid bonds की बात हुई, guarantees की बात हुई. We have studied all these concepts. तो यहाँ पर सिर्फ ये बात हो रही है कि इनकी वजह से जो बैंक
में लाइबिलिटी एक्रू करेगी, दैट वुड बी कॉल्ड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, the definitions, DFI has been defined, you already know, documents, equity of the bank, ये हमने पहले भी बात की। equity of bank, क्योंकि कमर्शियल कॉर्पोरेट जहां भी आप पढ़ेंगे, equity of bank is very much important. Equity of bank DFI, that means tier 1 capital. इसमें क्या कुछ शामिल है? That is the core capital. Tier 1 capital को कहते हैं, core capital भी कहते हैं, and that includes, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे टीयर 1 कैपिटल के या कोर कैपिटल? दैट इंक्लूड्स पेड अप कैपिटल, जर्नल रिजर्व्स, बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स। ये तमाम चीजें जब इनको आप एड अप करेंगे तो इसको आप टीयर 1 कैपिटल, कोर कैपिटल कहेंगे, एंड दैट इज द इक्विटी ऑफ ए बैंक। अब बैंक की इक्विटी आपको नजर आएगा कई जगह कि बैंक की इक्विटी के बराबर आप फाइनेंस कर सकते हैं, 2 टाइम्स कर सकते हैं, 4 टाइम्स कर सकते हैं, बट वेयर दैट इक्विटी इज, किसको आप इक्विटी कहेंगे? ये इक्विटी यहां से आप कैलकुलेट करेंगे और बाकी चीजें उसके बाद देखें। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपके जहन में रहना चाहिए। इक्विटी ऑफ द बोरोअर, ये बताया गया है बोरोअर की इक्विटी क्या है। That has been explained in detail what will be the equity of borrower. अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यहां तो डेफिनेशन, लेकिन इनकी जब एप्लीकेशन हो रही होगी तो वहां पर आपने देखना है, ये मैं आपसे बार बार ये बात करता हूं कि वहां पर आपने इस बात को देखना है कि ये जो रेगुलेशन है वो मेन पॉइंट्स जिनकी हमने बात की है उनको ये रिफ्लेक्ट करती है और किस एक्सटेंट करती है। To which extent those points, those parameters, those objectives which we have studied, those are reflected through these regulations that you have to see. इन regulations में कहीं नहीं लिखा होगा कि हम उस parameters के लिए regulations को जारी कर रहे हैं। That is up to your wisdom that you have to find it out. अब ये equity of borrower हो, ये equity of the bank हो, अब बैंक पर बाइंडिंग कर दिया गया कि आप अपने 2 टाइम्स से ज्यादा नहीं करेंगे, इन सर्कमस्टांसेस में 4 टाइम्स से ज्यादा नहीं करेंगे, ये क्लासिफिकेशंस करेंगे। और उसके साथ साथ ये बाइंडिंग जो है ये सिर्फ बैंक पर नहीं है, बोरोअर्स पर भी लगा दी गई। इससे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स? वो जो हमने बात की थी हेल्दी लैंडिंग एंड बोरोइंग कल्चर, वो आपको नजर आएगा इन रेगुलेशंस के थ्रू। लैंडिंग कल्चर, हाउ द हेल्दी लैंडिंग कल्चर इज क्रिएटेड। बैंक्स को बताया आप इस लिमिट में रहें, दीज आर योर लिमिट्स। आपका जो कोर कैपिटल है, टीयर 1 कैपिटल है, आपकी इक्विटी है, वो आपको इजाजत नहीं देता कि आप इससे आगे जाएं। और ये रेस्ट्रिक्शन, ये सीलिंग आप पर हमने लगा दी है। कंज्यूमर फाइनेंसिंग की बात कर रहे थे, बीइंग ए न्यू एक्सपीरियंस, तो वहां पर बैंकों को बता दिया कि इससे ज्यादा फाइनेंसिंग नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर में इतनी करेंगे, सेकंड ईयर में ये करेंगे। क्लासिफाइड एडवांस अगर आपके हो जाते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, तो फिर आपको कहां तक जा सकते हैं? व्हाट आर योर बाउंड्रीज एंड लिमिट्स? यू हैव नॉट टू क्रॉस दोज लिमिट्स। यहां पे क्या एक कल्चर डेवलप करने की कोशिश की जा रही, वो जो हमने बात की थी हेल्दी लैंडिंग कल्चर, साथ साथ पे हेल्दी बोरोइंग कल्चर भी डेवलप हो रहा है। बोरोइंग कल्चर कैसे डेवलप हो रहा है, दैट यू हैव टू सी। जब ये कहा जा रहा है कि बैंक फाइनेंस करेगा, हाइपोथिकेशन होगी, कहीं पे हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स होगी, कहीं पे मॉर्टगेज होगी, सिक्योर्ड फाइनेंस होगा, क्लीन लिमिट इससे ज्यादा नहीं होगी। ये एक तरफ तो हमें नजर आ रहा है that this is the binding on a bank, ये बैंक्स पर बाइंडिंग है, that is there। अगर ये नजर आ रहा है तो ये सही है अपनी जगह। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ ही दूसरी चीज आप देखें कि बोरोअर के लिए भी बाइंडिंग है कि आपको सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना पड़ेंगे। ए बोरोअर अप्रोचेस अ बैंक
बैंक कहते हैं जी हमारे पे तो रेस्ट्रिक्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वी कैन नॉट प्रोवाइड यू फाइनेंस विदाउट दिस कोलैटरल, ये पर्सनल फाइनेंस आपको चाहिए, लीजिए आप, you have to hypothecate your stocks, your goods, your items. That is a binding on the borrower. आपको हाउसिंग फाइनेंस चाहिए, आपने देखा इसको मॉर्टगेज लोन कहा गया है। मॉर्टगेज की जब एक पाबंदी बैंक पर लगा दी गई, when it is giving birth to the lending culture, as far as the banks are concerned, borrower पर भी पाबंदी आ गई है कि without the mortgage of that house he cannot take loan. This is how this culture is developed and this is what you have to see. ये जो मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं, वरना तो ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट्स, ये चीजें, ये मकसद आपके जहन में ना हो तो ये प्रूडेंशियल रेगुलेशन का सही मीनिंग, सही सिग्निफिकेंस, उसकी एसेंस आप तक नहीं पहुंच सकती। So students, when you are studying these regulations, all those basic points, all those objectives, the purpose, that should remain in your mind. वो जो मैं कहता हूं, that should always be at the back of your mind. फिर ये आपको सही मीनिंग्स कन्वे कर रहे होंगे, वो सिग्निफिकेंस, वो मीनिंग्स, those will be properly conveyed to you. And you will not only study it, you will really enjoy it. तो ये काम आपने करना है। तो बात हम कर रहे थे एक्विटी ऑफ द बोरोअर। ये एक्विटी बैंक की हो या बोरोअर की, क्यों जरूरी है? पहले तो यहाँ बात हो रही है कि एक्विटी ऑफ द बोरोअर है क्या। एक्विटी ऑफ द बोरोअर इंक्लूड्स पेड अप कैपिटल, जर्नल रिजर्व्स, बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स। वही आइटम्स हैं बोरोअर, उसके बैलेंस शीट के इन आइटम्स को आप जब ऐड करेंगे, दैट वुड रिफ्लेक्ट द equity of the borrower. Revaluation reserves on account of fixed assets and subordinated loans. The preference shares only with the following features will also be included in the equity of the borrower. ये स्लाइड पर मौजूद है what those features are. वो features आप देखिए. There should not be any provision for redemption or the redemption should be at the option of the issuer. रिडेम्पशन आपने देखा था, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की रिडेम्पशन, वहां पर हमने इस पे बात की एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट रिडेम्पशन इज। इन केस द इशूअर इज गिवन एन ऑप्शन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एज पर एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस, द इशूअर विल रिडीम द शेयर ओनली थ्रू अ सिंकिंग फंड created out of the profits of the company. Further, the sinking fund created for this purpose would not be calculated towards the equity of the issuer. The terms and conditions should not give rise to a contractual obligation on the part of the issuer to deliver another financial asset or exchange another financial instrument under conditions that are or can be potentially unfavorable to the issuer, or an option to convert the preference shares into common shares may be included in the features of the preference share. The terms and conditions of the preference shares should not be such as to compel the issuer economically, financially, or otherwise to redeem the share. Payment and distribution of dividend to the holders of preferred share, whether cumulative or non-cumulative, should be at the discretion of the issuer. तो स्टूडेंट्स, ये बात हो रही थी इक्विटी ऑफ द बैंक और इक्विटी ऑफ द बोरोअर। अब इस इक्विटी की कहाँ पे जरूरत होगी? असल बात यह है कि डेफिनेशन वहां पर अप्लाई होगी कि हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दैट इक्विटी एंड हाउ दिस इक्विटी विल बी अप्लाइड। एक्सपोजर की बात हुई थी कि एक्सपोजर क्या है, दैट हैज बीन डिफाइंड कि एक्सपोजर आप किसको कह, एक्सपोजर कहाँ तक होगा आपका, दैट इज डिफाइंड ओवर हियर। एक्सपोजर मैं आपको बता चुका हूं इन जनरल टर्म्स व्हाट इज मेंट बाय एक्सपोजर। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स की बात हमने पहले भी की थी, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप देख लीजिएगा व्हाट लिक्विड एसेट्स आर।
that is before you on the slide. आप देखिएगा, liquid assets are the assets which are readily convertible into cash without recourse to a court of law and mean encashment realizable value of government securities, bank deposits, certificate of deposits, shares of listed companies which are actively traded on the stock exchange, NIT units, certificates of mutual funds, certificates of investments, COIs जिनको कहते हैं आप। तो ये लिक्विड एसेट्स की बात है कि लिक्विड एसेट्स क्या हैं, उनकी डिटेल आगे मजीद दी हुई है। यू मे गो थ्रू इट। लिक्विड एसेट्स, हाँ, यहाँ पर जो बात देखने की है, एसएमई हमें अभी तक नहीं पता व्हाट इज एन एसएमई। ये जो हम रेगुलेशन देख रहे हैं एसएमई, उनको कैसे डिफाइन किया गया है प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में, एसएमई किसको कहा जाएगा, दैट हैज बीन डिफाइंड, और उसका जानना जरूरी है बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द रेगुलेशंस फॉर एसएमई फाइनेंसिंग। तो एसएमई की डेफिनेशन दैट इज बिफोर यू ऑन द स्लाइड, वो प्लीज देखिएगा। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मीन्स एन एंटिटी, ideally not a public limited company, which does not employ more than 250 persons if it is manufacturing or service concern, and 50 persons if it is trading concern, and also fulfills the following criteria of either A and C or B and C as relevant. ये ABC नीचे दिए हुए हैं, ये क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है। बाकी नंबर ऑफ पर्सन्स के बारे में बताया गया है कि 250 पर्सन्स, अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कंसर्न है तो 250 पर्सन से ज्यादा लोग एम्प्लॉय ना हो तो दैट इज एन एसएमई। उसके बाद अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो देयर शुड नॉट बी मोर देन 50 पर्सन्स एम्प्लॉयड इन दैट एंटरप्राइज, तो दैट वुड बी एसएमई एज फार एज द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड दैट इज कंसर्न। तो उसके पैरामीटर्स ये बता दिए गए। उसके अलावा फर्दर क्या चीज होगी एसएमई में, अ ट्रेडिंग सर्विस कंसर्न विद टोटल एसेट्स एट कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग अप टू ₹50 million। ट्रेडिंग एंड सर्विस कंसर्न विद टोटल एसेट्स एट कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग अप टू 50 million। ये ए है जो ABC की हम बात कर रहे थे। बी में क्या कहा गया, a manufacturing concern with total assets at cost excluding land and building up to ₹100 million. C, any concern trading, service or manufacturing with net sales not exceeding ₹300 million as per latest financial statements. An individual, if he or she meets the above criteria, can also be categorized as an SME. So students, ये आपने SME की डेफिनेशन देखी कि SME कौन है जिनके लिए रेगुलेशन बनाई गई। SME का क्या क्राइटेरिया है, एक नंबर ऑफ पीपल्स एम्प्लॉयड वो बात की, दूसरे उसको एसेट्स के हिसाब से देखा, उसकी डिफरेंट कैटेगराइजेशंस बताई। कहते हैं इंडिविजुअल भी SME हो सकता है इफ ही फुलफिल्स दिस क्राइटेरिया which has been laid down. तो ये SME that has been defined और इसी के मुतालिक रेगुलेशंस। अब हम रेगुलेशंस की तरफ आते हैं। पहली बात जो की गई है रेगुलेशन 1 में, that is the source and capacity of repayment and cash flow back lending, इसके बारे में बात हुई है इन रेगुलेशन 1 में। तो हम देखते हैं कि रेगुलेशन 1 में हमें क्या बताया जा रहा है। रीपेमेंट कैपेसिटी यहाँ पहले तो आपने देखनी, और बेसिस जो हमने जनरली बात की, किसी भी फाइनेंस का बेसिस वो कैश फ्लो बेसिस होना चाहिए। कोई भी फाइनेंस लैंडिंग कोई भी हो, उसे कैश फ्लो बेसिस जो है दैट इज द रियल बेसिस। बहुत डिटेल से बात की थी मैंने, आपको बताया ये आखिर सिक्योरिटीज को कोलैटरल क्यों कहते हैं, व्हाई दीज आर कॉल्ड कोलैटरल्स, इस पर हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की। असल बेसिस जो भी है रीपेमेंट का दैट इज द कैश फ्लो। कैश फ्लो जनरेशन जो है वो कोई भी लोन हो, कोई एसएमई की बात नहीं मैं कर रहा, एनी फाइनेंस, उसका बेसिस जो है एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज वो देखा जाता है, वो असेस किया जाता है
वो इवेल्युएट किया जाता है, उसके बेसिस पर कोई फाइनेंस अगर किया जाए तो दैट इज द रियल बेसिस। बाकी तो एक रेजॉर्ट है, लास्ट रेजॉर्ट कह सकते हैं, सेकेंडरी रिलायंस कह सकते हैं, ये कोलैटरल्स एंड सिक्योरिटीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इनकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर रहा, मैं इनकी इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। दैट इज देयर, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप डील कर रहे हो एज ए बैंकर तो कोलैटरल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, यू हैव टू टेक ऑल द स्टेप्स। लेकिन असल बेसिस एज ए क्रेडिट सैंक्शनिंग ऑफिसर और द पार्ट ऑफ द कमेटी, वहां पर जो आप देखेंगे वो किसी बिजनेस का, एंटरप्राइज का आप कैश फ्लोज देखेंगे। These cash flows should impress you while you are making these judgments, while you are sanctioning the loan. तो ये कैश पेमेंट, कैश फ्लोज जो हैं, that is of prime importance. तो रीपेमेंट कैपेसिटी में असल बात यही हो रही। तो रेगुलेशन 1 प्लीज देखिएगा, बैंक्स DFIs shall specifically identify the sources of repayment and assess the repayment capacity of the borrower on the basis of assets conversion cycle and expected future cash flows. तो ये बेसिस है, ये स्लाइड पर फर्दर है, आप देखिए। इन ऑर्डर टू ऐड वैल्यू द बैंक्स DFIs आर एनकरेज्ड टू असेस कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द पर्टिकुलर सेक्टर, इंडस्ट्री they are lending to and its future prospects. The bank's DFIs should be able to identify the key drivers of their borrowers' businesses, the key risks to their businesses and their risk mitigants. ये रिस्क मैनेजमेंट, अदर फैक्टर्स, मार्केट फैक्टर कहते हैं, ये सिर्फ कैश फ्लोज के साथ ये एक फैक्टर है, बाकी दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनको भी देखना बैंक्स के लिए जरूरी है। कोई भी DFIs हैं, बैंक्स हैं, कोई लैंडर्स हैं, दे हैव टू सी टू इट। तो ये रेगुलेशन 1 में ये बात की गई। फ्यूचर कैश फ्लोज की बात है, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। रेगुलेशन 2 में पर्सनल गारंटीज की बात की कि पर्सनल गारंटीज भी लेनी चाहिए। रेगुलेशन 2 प्लीज देखिएगा, ऑल फैसिलिटीज एक्सेप्ट दो सिक्योर्ड अगेंस्ट लिक्विड एसेट्स extended to SMEs shall be backed by personal guarantees of the owners of the SMEs. In case of limited companies, guarantees of all directors other than nominee directors shall be obtained. अब यहां पर यह बात हो रही है कि अगर कोई कंपनी है, लिमिटेड कंपनीज, वहां पर डायरेक्टर्स की पर्सनल गारंटी भी लें। SMEs हों तो वहां पर ओनर्स की पर्सनल गारंटी भी ली जाए। वो एक एंटिटी है, SME इज एन एंटिटी, कंपनी इज एन एंटिटी। अब जब आपकी कंपनी को फाइनेंस कर रहे हैं तो वो तो एक लीगल एंटिटी है कंपनी अपनी जगह, उसे आप सिक्योर कर रहे हैं डिफरेंट मीन्स के जरिए अपने फाइनेंस को विद द कंपनी, दैट्स ओके। लेकिन वो कहते हैं जो डायरेक्टर्स हैं उनकी आप पर्सनल गारंटी भी लीजिए, अदरवाइज their liabilities is only limited to the extent of the shares held by them. जब वो पर्सनल गारंटी देते हैं तो वो आपको याद होगा कि गारंटी में कॉन्सेप्ट क्या है, वहां पर उनकी सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। अब वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द शेयर होल्डर्स एंड द डायरेक्टर्स वो तो उन पर है, अब वो पर्सनली भी उसके लिए लायबल हो गए, तो दैट इज एडेड। ये अब वही जो बात है, अब मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, इट इज अप टू यू टू सी टू इट। वो हेल्दी लैंडिंग एंड बोरोइंग कल्चर की बात हो रही, ये उस वजह से ये चीजें यहाँ पे लाई जा रही हैं। ये रेगुलेशन मौजूद हैं तो उससे वो कल्चर जो है वो डेवलप होगा, एंड दे आर फोर्स टू डेवलप दैट। ये कल्चर ऐसा नहीं कोई डिस्क्रेशनरी बात है कि आप इसको डेवलप कर लें या ना करें। दीज आर द रेगुलेशंस एंड दीज रेगुलेशंस have to be complied with by the respective banks. जाहिर है बैंक्स पर होगा तो उसका असर बोरोअर्स पर भी होगा, तो लैंडर्स और बोरोअर्स जो हैं दोनों पर इसका असर पड़ेगा। अब क्लीन फैसिलिटीज दी जा सकती हैं। रेगुलेशन नंबर 3 में बताया गया है कि क्लीन फैसिलिटीज की लिमिट्स क्या होगी, किस एक्सटेंट तक क्लीन फैसिलिटीज दी जा सकती हैं। रेगुलेशन 3 देखिएगा, दैट इज बिफोर यू ऑन द स्लाइड।
In order to encourage cash flow based lending, banks are allowed to take clean exposure. That is, facility is secured solely against personal guarantee. पर्सनल गारंटी से अगर सिक्योर्ड है तो वो कोई टेंजिबल सिक्योरिटी तो नहीं है, एक्सपोजर तो वहां पर है, इसको क्लीन एक्सपोजर का नाम दिया गया। तो स्टूडेंट्स ये स्लाइड पर देखिए, द फैसिलिटी सिक्योर्ड सोलली अगेंस्ट पर्सनल गारंटीज, ये बात हम देख चुके हैं। फर्दर इसी स्लाइड पर है, on a SME up to rupees 3 million provided that funded exposure should not exceed rupees 2 million। यहां पर यह बात की है कि क्लीन एक्सपोजर अप टू 3 मिलियन लिया जा सकता है। वो यहां पर कह रहे हैं कि अगर पर्सनल गारंटीज के अगेंस्ट फाइनेंस है, दैट इज द क्लीन एक्सपोजर, दैट कैन बी टेकन टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 3 मिलियन। लेकिन इस एक्सपोजर में देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज, दैट यू ऑलरेडी नो। These can be funded as well as non-funded facilities। तो यहां पर यह बात है कि ये एक्सपोजर 3 मिलियन तक, 2 मिलियन जो है दैट शुड बी ऑफ फंडेड फैसिलिटीज। एक्सपोजर शुड नॉट एक्सीड रुपीज 2 मिलियन। फंडेड एक्सपोजर वो 2 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा। बाकी नॉन फंडेड एक्सपोजर हो सकता है, आपको पता है ये जो आप लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटीज और ये जो बातें हो रही हैं, ये नॉन फंडेड एक्सपोजर। फंडेड एक्सपोजर दैट इज अप टू 2 मिलियन, रेस्ट कैन बी नॉन फंडेड एक्सपोजर। क्लीन एक्सपोजर जो है दैट विल नॉट इन टोटल एक्सीड रुपीज 3 मिलियन। तो ये रेगुलेशन 3 के बारे में बात है। इसके बाद सिक्योरिटीज की बात, अभी ये क्लीन एक्सपोजर की बात है, उसके फौरन बाद हम सिक्योरिटीज पर आ गए। दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन रेगुलेशन नंबर 4। दीज आर द रेगुलेशन कंसर्निंग SMEs सब्जेक्ट टू द रिलैक्सेशन इन रेगुलेशन R3, रेगुलेशन नंबर 3 आप इसे कह सकते हैं। फॉर फैसिलिटीज अप टू रुपीज 3 मिलियन, ऑल फैसिलिटीज ओवर एंड अबव दिस लिमिट shall be appropriately secured as per satisfaction of the bank's DFIs। That's very simple। यहां पर ये कहा कि 3 मिलियन की जो हमने बात की थी, क्लीन एक्सपोजर हो सकता है as per condition laid down in regulation 3। फंडेड एक्सपोजर 2 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा, that is the condition। ये सब्जेक्ट टू उसकी तरफ इशारा कर रहा है। उसके अलावा अगर आप फाइनेंस करना चाहते हैं तो दैट शुड बी ड्यूली सिक्योर्ड। आपको पता है कि सिक्योर्ड एडवांस कैसे हो। तो रेगुलेशन 5 की बात हो रही है, दैट इज अबाउट द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में हम बात कर चुके हैं जब हम लैंडिंग की बात कर रहे थे, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंडिंग्स, फाइनेंसेस, उनकी जब हमने बात की तो मार्जिन की हम बात कर चुके हैं कि मार्जिन क्या होता है और मार्जिन क्यों होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इस बात को सिग्निफाई करते हैं कि जो आप सिक्योरिटीज ले रहे हैं, जो आप एसेट्स ले रहे हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये हमारे कोलैटरल्स हैं, ये सिक्योरिटीज हैं, इन केस ऑफ द डिफॉल्ट बाय द बोरोवर वी कैन रिवर्ट टू दीज सिक्योरिटीज। तो वो उस सिक्योरिटीज, उन एसेट्स पे मार्केट कंडीशंस इन्फ्लुएंस करते। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आप की एक्सपोजर दैट इज 1 मिलियन रुपीज, आपसे मुराद है बैंक। अब बैंक अपना 1 मिलियन को सिक्योर करना चाहता। बैंक ने कोई एसेट्स देखा, 1 मिलियन का एक एसेट लिया, उसकी मार्केट वैल्यू उस वक्त 1 मिलियन है, उसको मॉर्टगेज कर ली। अब बैंक कसे डिफॉल्ट कर गया और 100,000 उसने पे किए, 900,000 अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब वो एसेट्स विच वाज वैल्यूड एट रुपीज 1 मिलियन एट दैट पॉइंट इन टाइम, उसकी वैल्यू मार्केट में कम होगी। अभी एसेट्स किस लिए आप लेते हैं, ये कोलैटरल्स किस लिए बैंक लेता है कि अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर जाए तो उसको डिस्पोज ऑफ करके उससे कैश रियलाइज कर लें और अपना लोन रिकवर कर लें। दैट इज द पर्पस बिहाइंड इट।
इसलिए ये सारा काम किया जाता है। तो ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या है? मार्जिन इस बात को सिग्निफाई करता है, मार्जिन इस वजह से लिया जाता है कि अगर कोई मार्केट फ्लक्चुएशन हो भी तो मार्जिन उसको कवर कर। से यू नीड ए सिक्योरिटी फॉर 1 मिलियन रुपीज, अगर आपके यहाँ पे मार्जिन है 20% तो आप 1.2 मिलियन रुपीज की सिक्योरिटी लेंगे इंस्टेड ऑफ 1 मिलियन। अब 20% अगर फ्लक्चुएशन होती भी है दैट इज कवर्ड बाय दैट मार्जिन। आपको जरूरत 1 मिलियन की है, आप कहते नहीं जी हम 1.2 मिलियन लेंगे, तो वो मार्केट फ्लक्चुएशन देखते हुए दैट इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ द एक्सपर्ट्स कि कितना मार्जिन लेना चाहिए। अब ये मार्जिन में मैंने आपको 2 बातें बताई। मार्जिन 2 किस्म के हो सकते हैं। एक मार्जिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फिक्स कर दिए हैं कि ये मार्जिन आपको लेने पड़ेंगे। दीज आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी मार्जिन। लेकिन बैंक्स पर कोई बाइंडिंग नहीं है, डीएफआईज पर कोई बाइंडिंग नहीं है। उसके अलावा अगर अपने पोर्टफोलियो को, अपने लोन को, अपने अकाउंट को फर्दर सिक्योर करना चाहते हैं तो उस मार्जिन से ज्यादा मार्जिन भी ले सकते हैं। लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस्क्राइब कर दिया है वो स्टैट्यूटरी मार्जिन तो हर सूरत में लेना पड़ेगा, वहां कोई रिलैक्सेशन नहीं कर सकते। तो ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट ये है कि मार्जिन लेने पड़ेंगे एज पर द डायरेक्शंस प्रोवाइडेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम टाइम टू टाइम एज फार एज स्टैट्यूटरी मार्जिन आर कंसर्न। उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी है, डिस्क्रेशन है, डिसीजन मेकिंग है, अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर करने के लिए अगर उससे ज्यादा चाहें तो बैंक्स ले सकते। ये मार्जिन इस वजह से लिए जा सकते। That is the purpose why margins are taken, why margins are advised by the State Bank of Pakistan and why the banks at their own take margin. ये उसका कॉन्सेप्ट। अब रेगुलेशन 5 में मार्जिन के बारे में क्या कहा गया? बैंक्स मार्जिन ले सकते हैं, वो मार्जिन को लेंगे, जहां पर स्टैट्यूटरी मार्जिन है वो उसी तरह लिया जाएगा। तो ये रेगुलेशन 5 में दैट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड। इसी तरह पर पार्टी एक्सपोजर लिमिट। अब ये भी बोरोइंग लैंडिंग कल्चर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इससे ज्यादा एक्सपोजर एक पार्टी के अगेंस्ट आप नहीं ले सकते। बैंक में हमने बात की थी कि साइज की डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप एक पार्टी या 2 पार्टियों पर सारी एक्सपोजर बैंक की ले लेंगे, बैंक में भी इन प्रॉब्लम। इफ दे डिफॉल्ट बैंक डिफॉल्ट। तो ये यहाँ पर लिमिट्स फिक्स कर दी गई हैं। ये रेगुलेशन 6 में आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है 75 मिलियन और 150 मिलियन, ये 2 फिगर इन्होंने दी हुई हैं। टोटल फैसिलिटीज जो हैं 150 मिलियन से ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन मैक्सिमम एक्सपोजर टू सिंगल एसएमई दैट शैल नॉट एक्सीड ₹75 मिलियन। टोटल एक्सपोजर विद ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ए एसएमई दैट शैल नॉट एक्सीड 150 मिलियन। 1 मिलियन कह सकते हैं इसको, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगा। तो ये आप देख लीजिए R6, द मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ ए बैंक ऑन ए सिंगल एसएमई शैल नॉट एक्सीड ₹75 मिलियन। द टोटल फैसिलिटीज availed by a single SME from the financial institutions should not exceed ₹150 million, provided that the facilities excluding leased assets shall not exceed ₹100 million. तो ये रेगुलेशन 6, रेगुलेशन 7 एग्रीगेट एक्सपोजर की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद लिमिट्स हैं रेगुलेशन 7 में। अगर क्लासिफाइड लोन below 5% then no limit, below 10% 3 times of equity, below 15% है अगर क्लासिफाइड पोर्टफोलियो then 2 times of equity, अगर 15% और उससे ज्यादा क्लासिफाइड पोर्टफोलियो है then up to the equity, यानी कि 1 time, जितनी इक्विटी उतना फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये डिसिप्लिन आप देख सकते हैं। नाउ यू को रिलेटेड विद द हेल्दी लैंडिंग एंड बोरोइंग कल्चर। रिस्क मैनेजमेंट भी हो रही है, गुड गवर्नेंस भी है, हेल्दी लैंडिंग एंड बोरोइंग कल्चर।
मिनिमम कंडीशंस फॉर टेकिंग एक्सपोजर की बात हुई रेगुलेशन नंबर 8 में, दैट यू कैन सी। इसी तरह प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लोन that is to be guaranteed and ensured through regulation 9, regulation 10, the restrictions on facilities to the related parties उसे डील किया गया है। रेगुलेशन 11 में क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजंस की बात हुई है। ये तमाम रीस्केजुलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग एंड ऑल दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन रेगुलेशन 11। तो ये तमाम चीजें जो हैं यू कैन गो थ्रू इट। जो मेन सेलिएंट फीचर्स थे वो मैंने आपको इनके बताए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टाइप की तरफ मूव कर रहे हैं। These are the regulations for corporate and commercial banking. Like all other regulations, पहले यहाँ पर definitions. Account holder, that has been defined. Bank, that you know, that has been defined. Borrower defines. Contingent liability, you know, those have been defined. Corporate card, that you already know. DFI you have seen. Document you know. Alternate director you know. CEO you already know that. तो ये डेफिनेशन जो आपको पता है, इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। की एग्जेक्टिव्स वो उन्होंने बता दिए गए हैं। की एग्जेक्टिव कौन कौन से होंगे। एन एग्जेक्टिव एक्टिंग एज सेकंड टू CEO, ये की एग्जेक्टिव्स होंगे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ अकाउंट्स, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, कंट्री ट्रेजरर, हेड ऑफ द क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, head of operations, head of compliance, head of human resource, head of information technology, head of Islamic banking. These are the key executive. ये मैं इसलिए आपको बता रहा था कि आगे देखा जाएगा कि की एग्जेक्टिव की रिक्रूटमेंट और उसके लिए क्या करना है बैंक। Equity of the borrower you have seen and you know that. These are the definitions which are covered in it. Exposure has been defined. So group has been defined, liquid assets and all that. We move on to the regulations. Regulation 1, limit on exposure to a single person. Single person पर एक बैंक कितनी एक्सपोजर ले सकता है, ये रेगुलेशन आखिर क्या सिग्निफाई कर, ये बैंक्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहा है एट द फर्स्ट प्लेस, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को, इन वन वर्ड स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। अगर आप एक जुमले में बात करना चाहें, ऑल स्टेक होल्डर्स, उसमें सब आ जाते हैं। असल बात यह हो रही है कि आप किसी सिंगल पर्सन पे इससे ज्यादा एक्सपोजर नहीं ले सकते। ये आप ये समझ लीजिए आसानी की खातिर कि इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते एक पर्सन। ये लिमिट लगा दी, लोन देंगे तो आप एक्सपोज होंगे, वो आपकी एक्सपोजर होगी। बाकी एक्सपोजर की आप डेफिनेशन देख चुके हैं, आपको टेक्निकली पता है व्हाट इज एक्सपोजर, लेकिन फौरी तौर पर आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि एक्सपोजर से मुराद है कि लोन, क्योंकि लोन देंगे तो आप एक्सपोज होंगे। अगर इफ दैट इज नॉट सिक्योर्ड यू आर एक्सपोज टू रिस्क। डिफॉल्ट हो जाए सिक्योर लोन में भी तो यू हैव द प्रॉब्लम्स इन रिकवरी ऑफ दैट। तो एक्सपोजर की डेफिनेशन वही रखें जो आपने पढ़ी है, उसको आप दोबारा देखें। अब यहाँ है लिमिट ऑन एक्सपोजर टू ए सिंगल पर्सन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये देखिए, एंड दीज रेगुलेशंस आर फॉर कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल बैंकिंग फाइनेंस। कमर्शियल फाइनेंसिंग के लिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए जो एक्सपोजर आप ले सकते हैं, जो रेगुलेशंस हैं वो हमने किए। पहली रेगुलेशन एक्सपोजर के बारे में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये प्लीज आप स्लाइड पर देखिएगा। R1, द टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड बाय ए बैंक DFI to any single person shall not at any point in time exceed 30% of the bank's DFI's equity as disclosed in the latest audited financial statements, subject to the condition that the maximum outstanding against fund-based exposure does not exceed 20% of the bank's DFI's equity. तो ये एक्सपोजर की बात है रेगुलेशन में, ये एक पर्सन की बात। फिर ग्रुप की एक्सपोजर, दैट शैल नॉट एक्सीड 50%। ऑल डिटेल्स, SMEs एंड अदर्स, आप कैसे उनको डील करें। अब ये एक्सपोजर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको उस
बैकग्राउंड में आप जब देखेंगे तो दैट वुड कन्वे ए डिफरेंट मीनिंग टू यू, दैट वुड मेक इट पर्पसफुल। मीनिंग्स तो उसके वही हैं जो यहाँ पे दिए हुए, बट देयर इज समथिंग बिटवीन द लाइन्स दैट यू नीड टू सी। इसी तरह स्टूडेंट्स लिमिट ऑन एक्सपोजर अगेंस्ट कंटिजेंट लायबिलिटीज, वो लिमिट्स फिक्स कर दी गई हैं, ये आप रेगुलेशन 2 में देख सकते हैं। मिनिमम कंडीशंस फॉर टेकिंग एक्सपोजर्स, वो फिक्स कर दी गई। व्हाट आर दोस? While considering proposals for any exposure, including renewal, enhancement and rescheduling, restructuring, exceeding such limit as may be prescribed by State Bank of Pakistan from time to time, presently at rupees 500,000, banks DFIs should give due weightage to the credit report relating to the borrower and his group obtained from Credit Information Bureau of State Bank of Pakistan, CIB। ये हम पहले बात कर चुके हैं लैंडिंग, तो ये उसके बारे में बात की गई है और डिटेल्स दोज आर गिवन इन R3। लिमिट ऑफ एक्सपोजर अगेंस्ट अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटीज, दैट इज द लिमिट ऑन द एक्सपोजर अगेंस्ट अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग। अनसिक्योर्ड फाइनेंस हो तो क्या लिमिट होगी? वो 500,000 दैट इज द लिमिट, और बाकी कंडीशंस हैं, दोज आर गिवन ओवर हियर। रेगुलेशन 5 में बात की गई है कि लिंकेज बिटवीन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ द बोरोअर एंड टोटल एक्सपोजर फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसको आपने देखना है, दैट इज गिवन इन रेगुलेशन नंबर 5। दैट इज एन इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, यू रीड इट। बाकी इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, you just see to it. Exposure against shares, TFCs and acquisition of shares, that is in regulation 6, you can see it, ये आपके सामने है। Regulation 7, that is about the guarantees, तो guarantees आप लेंगे, requirements of securities as guarantee, उसमें क्या कहा गया? The requirement of security can also be waived by the banks, DFIs, in cases of guarantees issued to the Pakistani firms and companies functioning in Pakistan against the back-to-back counter guarantees of branches of guarantees issuing bank। DFIs are the banks, DFIs rated at least A। ये तमाम डिटेल्स दी हुई हैं, ये जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल के मुताबिक, किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की अप्रूवल एंड ऑल दैट, उसके मुताबिक हो तो ये उन्होंने वेवर बताया है, that you can deal according to that. These matters have been discussed in detail in Regulation 7. Regulation 8 classifications के बारे में है, वही 3 classifications जो हमने स्टडी की, लेकिन इसके साथ साथ डिफरेंट प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। So students, classifications remain the same. Substandard, doubtful loss, उनके पैरामीटर्स भी वही हैं, how these are to be classified, the same principles which we have discussed। तो ये क्लासिफिकेशंस हम पहले देख चुके हैं, वही पैरामीटर्स हैं, उसके मुताबिक क्लासिफाई होंगे। पीरियड भी वही है 90, 180 डेज एंड 1 ईयर। प्रोविजनिंग 25%, 50%, 100% एंड प्रिंसिपल ऑल्सो रिमेन्स द सेम। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो इससे हटके, विच आर अबाउट गवर्नेंस। व्हाट you see that there are regulations about governance. Regulation G1, Corporate Governance Board of Directors and Management, तो इसमें ज्यादा जो important है, fit and proper test is applicable on sponsors, both individuals and companies who apply for commercial banking license। इसके साथ next year है, next year 7B, इसमें क्या कुछ देखेंगे स्टूडेंट्स? fit and proper test में integrity, honesty and reputation, track record, solvency and integrity, qualifications and experience, conflict of interest, और ये सारी चीजें देखेंगे आप, तो उसके बाद you will make the decision। ये हमने बात की थी कि ये सारा कोई फाइनेंस के बारे में नहीं है, ये गवर्नेंस के बारे में भी। फिट एंड प्रॉपर टेस्ट, first 3 elements, these are applicable to all categories of individuals,
whereas the last three categories, ये जो अभी हमने बात की, will be considered while assessing fit and proper test of directors, chief executive officers and key executives of the bank's DFIs. अभी मैं आपको बता रहा था कि एग्जेक्टिव्स की लिस्ट हम क्यों देख रहे हैं, तो उनके लिए फिट एंड प्रॉपर टेस्ट, वो जो आपको नेक्स्ट चीज में आप देखेंगे परफॉर्म में है, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या उनमें चीजें होनी चाहिए, दैट इज ऑल मेंशन्ड ओवर देयर. एक क्वेश्चनर होता है, वो भी फिल इन करना होता है टू एंश्योर गुड गवर्नेंस इन द बैंक. अब ये जब अपॉइंटमेंट्स आप कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, वो किसी और बैंक के बोर्ड पर तो नहीं. इसी तरह की एग्जेक्टिव्स के लिए क्वेश्चनर्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं. ये किस लिए किया जा रहा है? ये प्रूडेंशियल एंश्योर कर रहे हैं कि उस इंस्टीट्यूशन में एक गुड गवर्नेंस हो. वो जिन्होंने उस अदारे को चलाना है उनके स्टैंडर्ड क्या है, नॉट ओनली एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अदर स्टैंडर्ड्स. डिफॉल्टर्स तो नहीं है किसी बैंक के, वो टैक्स डिफॉल्टर्स तो नहीं है. तो ये तमाम चीजें देखी जाती हैं कि दे आर नॉट कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर क्रिमिनल ऑफेंस. ये तमाम चीजें और बहुत सारी चीजें जो यहाँ इसमें दी गई हैं, उन सबको देखने के बाद ये जो है उनकी इंडक्शन की जाती है. दैट इज G1, responsibilities of the board of directors, that is considered in G1. इसी तरह मैनेजमेंट की बात हो रही, G1 में मैनेजमेंट को भी देखा गया है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हम बात कर रहे हैं. नो मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए बैंक DFI होल्डिंग 5% or more of the paid up capital of the bank DFI either individually or in concert with family members or concerns companies in which he has the interest, controlling interest, shall be appointed in the bank DFI in the capacity except as chief executive. तो ये वो जो लैंडिंग, बोरोइंग, गवर्नेंस और मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे थे, वो आपको इन रेगुलेशन में नजर आएगी. कंप्लायंस ऑफिसर की बात है. फिर रेगुलेशन 2 में बात की डीलिंग विद द डायरेक्टर्स, मेजर शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक्स DFI. उसमें डिफरेंट क्वेश्चनर्स हैं, नेक्स्चर्स हैं, वो आप देखेंगे. तो ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी. इसी तरह G3 में contributions and donations for charitable, social, educational institutions, इसके क्या पैरामीटर्स होंगे, कैसे ये किया जाएगा. फिर G4 आप देख रहे हैं. इसके साथ स्टूडेंट्स कुछ रेगुलेशंस हैं. M1 नो योर कस्टमर हम देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन एंड ऑल दैट वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलेशन M2 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स, उसके लिए पॉलिसी बनाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिकॉर्ड रिटेंशन, क्रॉसपॉन्डेंट बैंकिंग एंड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, इसके बारे में M3, M4 एंड M5 दीज रेगुलेशंस आर देयर. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स देयर आर रेगुलेशंस O1 to O5. These relate to undertaking of cash payments outside the bank's authorized place of business, that is not allowed. Window dressing, अकाउंट्स में वही रिफ्लेक्ट करेंगे जो ट्रू पिक्चर है. आप इन्फ्लेट नहीं करेंगे अपनी पोजीशन को अनऑथोराइजली कि मार्कअप का अगर आपका एक्सपेंस है वहां पे एक्सपेंस आप जो है उसको शो नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं अपने इनकम को. इसको विंडो ड्रेसिंग ऐसे स्टेप्स को कहते हैं. रिकंसिलिएशन इंटर ब्रांच अकाउंट की करना जरूरी है. मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स इन पाकिस्तान, उस पर कंडीशंस हैं. फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं कि हाउ यू कैन इन्वेस्ट, हाउ फार यू कैन इन्वेस्ट. तो ये जो है तमाम चीजें जो है ये प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में दी गई. तो स्टूडेंट्स नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द प्रूडेंशियल रेगुलेशन. ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है, इस पर और बहुत बात हो सकती है, लेकिन हमने काफी बात की, आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा. तो ये प्रूडेंशियल रेगुलेशंस, टू क्लोज इट वी कैन से these are necessary for the good governance and the risk management of the banking sector that develops a healthy lending and borrowing culture, and it is necessary for the banks to
comply with it, though it is the direction of the State Bank of Pakistan, and they are supposed to do that. They have to act upon it. They have to comply with it. But still they must understand that it is in their own interest, and with this spirit, banks should follow the prudential regulations. So it is necessary for all prudent bankers to follow these regulations, and these are being followed, and that would help the banking sector to grow. With that, I close today's lecture. Thank you for being with me. Allah Hafiz.